ये थी आंध्र प्रदेश की सुर्खियां और अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 462 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 7 मरीजों की मौत हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कृष्णा जिले में 3, कर्नूल जिले में 3 और गुंटूर जिले में 1 मरीज की मौत हुई है। रियासत में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 119 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 20,639 अफराद का टेस्ट किया गया है। रियासत में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 9,834 हो गई है। कृष्णा और विजयवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में कोविड टेस्टिंग सेंटर्स में इजाफा किया जा रहा है। जिला कलेक्टर इम्तियाज अहमद ने बात कही है। उन्होंने कहा कि जिला कृष्णा में कोविड टेस्टिंग के लिए स्मार्ट बस सर्विसेज शुरू की गई। मुश्तबा अफराद अपना नाम रजिस्टर्ड करवाकर मुफ्त में कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं। जिला कलेक्टर ने कहा कि मछलीपट्टनम, नूजिवीडु, इब्राहीमपट्टनम और जग्यापेटा में भी कोरोना टेस्ट के लिए स्मार्ट बस सर्विसेज शुरू की गई है। इसके अलावा मोबाइल नंबर पर भी कोरोना टेस्ट के लिए स्लॉट बुक किया जा सकता है। త్వరితగతిన మనకు టెస్టులు నిర్వహించి ఎవరికైతే కరోనా లక్షణాలు ఉన్నాయో వారు ఇమ్మీడియట్గా టెస్ట్ చేసుకునేటట్టు అందరికీ ఒక ఫెసిలిటీ కల్పించాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన ఆదేశాల మేరకు విజయవాడలోను, కృష్ణా జిల్లాలోని మచిలీపట్నము, నూజివీడు, అలాగే జగ్గయ్యపేట, ఇబ్రహీంపట్నం ఈ ప్రాంతాల్లో మనకు స్మార్ట్ బస్సెస్ని పెట్టి మనకు శాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ స్మార్ట్ బస్సెస్ మనకు విజయవాడలో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఎవరైనా టెస్ట్ చేయించుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళు ఒక నంబర్కు కాల్ చేసి మనకు రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. నుంచి ఉదయం 8 గంటల నుంచి మనకు సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఈ బస్సెస్ మనకు విజయవాడ నగరంలో కృష్ణలంక, గాంధీ స్కూలు, ఇందిరాగాంధీ స్టేడియము, బసవ పున్నయ్య స్టేడియము, గుణదల మేరీమాత టెంపుల్, అలాగే విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ ఈ 6 ప్రాంతాల్లో మనకు ఈ బస్సెస్ ఉంటాయి. ఎవరైనా కూడా బస్ దగ్గరకు వచ్చేసి టెస్టులు చేసుకోవచ్చు. ముందుగా అలాగే మనకు మచిలీపట్నము, నూజివీడు, జగ్గయ్యపేట, ఇబ్రహీంపట్నం ఈ 4 చోట్ల కూడా మనకు బస్సెస్ ఉంటాయి. ఎవరైనా మనకు దీంట్లో రిజిస్టర్ తెలుసుకున్న వారు 9963112781 ఈ నంబర్ కాల్ చేసి ఇమ్మీడియట్గా రిజిస్టర్ చేసుకోమని ప్రతి ఒక్కరిని కోరడం జరుగుతుంది. राजा महिंद्रावरम में कोविड-19 सैंपल कलेक्शन सेंटर कायम किया गया है। मकामी रुकन पार्लियामेंट एम भरत ने सैंपल कलेक्शन सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर और दीगर भी मौजूद थे। रुकन पार्लियामेंट ने अवाम से अपील की है कि वो खुद सेंटर पहुंचकर टेस्ट करवाएं। सिर्फ 5 मिनट में सैंपल हासिल कर लिए जाएंगे। कमिश्नर अभिषेक किशोर ने कहा कि कोरोना वायरस को तीसरे स्टेज में दाखिल होने से रोकने की जिम्मेदारी हम सब की है। మనలో మన యాటిట్యూడ్లో మార్పు రావాలి. మనం అందరం కూడా ఆలోచన చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్రభుత్వం ఒక ఎక్స్టెంట్ దాకా చేయగలుగుతుంది. మనలో మార్పు రాకపోతే మనం చేయగలిగేది కూడా ఏమీ లేదు. అంటే ఇప్పుడు ఇది మన 3rd స్టేజ్లోకి రాకుండా ఉండే విధంగా, కమ్యూనిటీ ట్రాన్స్మిషన్లోకి రాకుండా ఉండే విధంగా మనం అందరం కూడా బాధ్యత తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో కమ్యూనిటీ ట్రాన్స్మిషన్కి రాకుండా ఉండే విధంగా ప్రజల్లోనే చైతన్యం రావాలి. సో హై ఇన్సిడెన్స్ బాంబే, గుజరాత్, తమిళనాడు ఇలా ఏవైతే హై ఇన్సిడెన్స్ 6 స్టేట్స్ని మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ డిక్లేర్ చేశారో అక్కడ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వాలంటరీగా టెస్ట్ చేసుకోండి. ఈ వాలంటరీ టెస్టింగ్ కోసమే ఈ 10 అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్స్లో మనం ఈ కోవిడ్ టెస్టింగ్ కేర్ సెంటర్స్ని పెట్టడం జరిగింది. మీరు రాగానే జస్ట్ ఒక 5 మినిట్స్లో మీ ఆధార్ డీటెయిల్స్తో ICMR ఫామ్ జనరేట్ చేసి ఇక్కడ మీ శాంపుల్ కలెక్ట్ చేస్తారు. మీరు ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు, మిమ్మల్ని క్వారంటైన్ చేయం. కేవలం మీది పాజిటివ్ అని డిక్లేర్ అయితే మాత్రం మిమ్మల్ని మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఒకసారి కన్ఫర్మేటరీ టెస్టులు చేసుకొని మీకు ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ లేకపోయినా అండ్ మీకు ఇంట్లో మీరు హోమ్ క్వారంటైన్ చేసే పరిస్థితులు ఉంటే దాన్ని అనలైజ్ చేసి మిమ్మల్ని మీ ఇంట్లోనే మిమ్మల్ని పెట్టడం జరుగుతుంది. మీ ఇంట్లోనే మీకు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. कर्नूल कलेक्ट्रेट में कलेक्टर वीरा पांडियन की क़यादत में आला अहदेदारों का जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इस दौरान जिले में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लिया गया। जिला कलेक्टर ने कोरोना की वबा को रोकने के लिए शूर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद करने का बल्दी हुक्काम को मशवरा दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने जिला कर्नूल में कोविड टेस्टिंग के मजीद 2 लैब कायम करने की मंजूरी दी है। अब तक रियासत के 66,000 अफराद की कोरोना टेस्टिंग हुई है। नए लैब के क़याम के बाद टेस्टिंग में इजाफा किया जाएगा।
कोरोना वायरस और चीनी अशियाई के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है। अनंतपुर से ताल्लुक़ रखने वाले जी तिरुपतिया नामी BSNL के साबिक मुलाजिम बाबा कौम महात्मा गांधी के रूप में चीनी अशिया के खिलाफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एहतजाज कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कोरोना वायरस से मुतल्लिक अवाम में शोर बेदार कर रहे हैं। उन्होंने मुल्की अवाम से चीनी अशिया के बायकॉट का मुतालबा भी किया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है। विजयवाड़ा में कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी के रुकन S पद्माश्री ने अपनी 2 व्हीलर को भैंस को बांधकर एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि जब से मरकज में बीजेपी इक़्तिदार में आई है उस वक्त से पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। एक जानिब अवाम कोरोना वायरस से परेशान है, दूसरी जानिब मरकज की बीजेपी हुकूमत पेट्रोल का इजाफी बोझ आयद करते हुए अवाम की परेशानियों में मजीद इजाफा कर रही है। అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు ధరలు తగ్గినా కూడా భారతదేశంలో మాత్రం బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత గత 6 సంవత్సరాలుగా అడ్డగోలుగా పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెంచేస్తూ సామాన్యుల పైన భారం మోపుతా ఉంది ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం। ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ లాక్డౌన్ సమయంలో కూడా పనులు లేక సామాన్యులు ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడతా ఉంటే గత 15 రోజులుగా పెట్రోల్ డీజిల్ పైన దాదాపు 10 రూపాయల పైగా అడ్డగోలుగా రేట్లు పెంచేసి ఖజానా నింపుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది భారతీయ జనతా పార్టీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు। ఎప్పటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరిచి ప్రధానమంత్రి గారి పైన ఒత్తిడి తీసుకురా। साबिक रुकन असेंबली और लीडर CPM MA गफूर ने YCP हुकूमत पर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में YCP हुकूमत ने CAA की तायीद में वोट दिया था। अब जबकि रियासत के मुसलमानों को खुश करने के लिए असेंबली में NRC के खिलाफ करारदाद मंजूर किया गया। MA गफूर ने जगन हुकूमत से रियासत में NPR न करवाने की अपील की। रियासती हुकूमत आंध्र प्रदेश असेंबली में जो रेजोल्यूशन पास करी है NRC NPR के बारे में, वो तो मैं समझता हूँ ये अधूरा ही रेजोल्यूशन है, क्योंकि YSR कांग्रेस CAA को तायद करी है, पार्लियामेंट में CAA के तायद में वोट दी है। अच्छा, जब दिए ही तो अब तो अपना रवैया दुरुस्त कर लेती हैं क्या? अब क्या बोल रहे हैं, NRC नहीं करते, NPR में भी पुराना फॉर्मेट है तो नहीं करते बोल के बोलते हैं। पुराना फॉर्मेट नया फॉर्मेट नहीं, NPR नहीं करना, NPR के मुखालिफ में करार ना दिए तो उसको माने जाए हम। उसका रेजोल्यूशन ही अधूरा रख ले के ये आंसू पोंछने के काम करना, मुसलमानों को धोखा देने में मैं समझता हूँ इनकी कोशिश है। मैं क्या बोल रहा हूँ, NPR हम नहीं करते बोल कर रेजोल्यूशन पास करना। NPR NRC NPR करने के बाद NRC करे नहीं करे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि NRC में NPR की जो इन्फॉर्मेशन है वो बुनियाद होती है। तो NRC नहीं करती, तुम्हें करना क्या है नहीं करना क्या है, करे तो नहीं करे तो फ़र्क नहीं पड़ता, NPR नहीं करना। तो ये रेजोल्यूशन एक ही बात हो कि CAA करें क्या भी होने दो, NPR आंध्र प्रदेश में नहीं करते बोल के एक सेंटेंस का रेजोल्यूशन अगर YSR कांग्रेस करी तो हमारी तायद रहती है। SDPI ने आंध्र प्रदेश असेंबली में मंजूर करदा NPR NRC के करारदाद को ड्रामा करार दिया। करनूल में मीडिया से बात करते हुए SDPI के मकामी सदर अब्दुल्ला खान ने कहा कि जगन हुकूमत मुसलमानों को हथेली में जन्नत दिखा रही है। उन्होंने NPR को पूरी तरह से रियासत भर में बायकॉट करने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। 15 जून 2020 को हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से जो असेंबली में NPR के रिलेटेड जो रेजोल्यूशन पास किया है उससे पब्लिक नाखुश है। जिस तरह नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, ओडिशा डायरेक्ट NPR को रिजेक्ट करे हैं, बाइकआउट करे हैं, उस तरह का रेजोल्यूशन अगर आंध्रा की असेंबली में पेश किया जाता और पास किया जाता तो हम सब आपकी तायद में होते और आपका शुक्रगुजार होते। इसलिए हम
यहाँ की वाईएसआर गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं, जिस तरह नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स पास किए हैं नो एनपीआर का, आप भी उसी तरह यहाँ असेंबली में नो एनपीआर का रेजोल्यूशन पास करें। डिमांड करते हैं ये टेम्पोररी रिलीफ माइनॉरिटीज़ को और दूसरी कम्युनिटीज़ को आंध्रा की गवर्नमेंट की तरफ से जो टेम्पोररी रिलीफ मिला है, आप टेम्पोररी रिलीफ नहीं परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए कि फिर एक मर्तबा आंध्रा के असेंबली में एनपीआर को बाइकआउट करने का एक रेजोल्यूशन पास करना है। 2010 के फॉर्मेट को चेंज करने की रिक्वेस्ट का रेजोल्यूशन पास नहीं करना है। करनूल जमीयत उलमा हिंद की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर सदर जमीयत उलमा हिंद करनूल मौलाना डॉक्टर काजी अब्दुल मजीद ने रियासत के मुसलमानों की जानिब से एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ करारदाद मंजूर करने पर वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। आंध्र प्रदेश की सियासत में रोज बरोज एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। हैदराबाद की एक निजी होटल में बीजेपी लीडर एस कामनेनी श्रीनिवास ने एसईसी नमागुड्डा रमेश कुमार से खुफिया मुलाकात की, जिसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया है। सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ये मुलाकात इस माह की 13 तारीख को हुई थी। फिलवक्त एसईसी नमागुड्डा रमेश कुमार का मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर दौरा है। ऐसे में बीजेपी लीडरों की मुलाकात से सियासी हलकों में खलबली मची हुई है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले पर बीजेपी क्या सफाई देती है। आंध्र प्रदेश में गैरकानूनी शराब की मुंतकली उरूज पर है। पड़ोसी रियासतों में शराब की कम कीमत के पेश नज़र सरहदी इलाकों से कसीर मिकदार में शराब मुंतकिल की जा रही है। विजयवाड़ा के कंचिका चरला पुलिस ने आरटीसी बसों में छानबीन की। इस दौरान 290 शराब की बोतलें सरकारी बसों से जब्त की गई। इसके अलावा 2 व्हीलर डीसीएम वैन में भी शराब मुंतकिल की जा रही थी, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।